Good morning, students. So today we have the same chapter quadrilateral, but in this chapter we are going through the two example and one questions. So these two examples are important. So note it down in your notebooks and submit it to me through the Google Classroom only today itself, right? And the one question from exercise 8.1 is also being shown in the video. So you observe how to solve it and write down it also in your notebook. Clear? Good morning, students. So today we have the same chapter quadrilateral, but in this chapter we are going through the two example and one questions. So these two examples are important. So note it down in your notebooks and submit it to me through the Google Classroom only today itself, right? And the one question from exercise 8.1 is also being shown in the video. So you observe how to solve it and write down it also in your notebook. Clear? Good morning, students. So we have again the same topic, quadrilateral. In this chapter we have some example which are important. So this is one of them. So example is, so that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other, right? We have to prove that these two diagonals AC and BD are perpendicular to each other. Let we have a figure of rhombus ABCD, right? ABCD the rhombus whose diagonals are AC and BD, and we have to prove that these two diagonals intersect each other at 90 degree or perpendicular to each other, right? So first of all हम ये जो prove करना है, first we write to prove what we have to prove, that AC is perpendicular to BD, right? Or we can write this in other words, that these diagonals intersect each other at point O, or in other word, that we have to prove that AC is perpendicular to BD, or we can write that this A angle AOD equal to angle COD equal to 90 degree, right? Whether we have to prove this one, or we can write this in another words, and that is this one. Clear? Okay. Now since it is a rhombus, so all sides are equal. Okay. So construction in the next heading, construction, draw diagonals AC and BD which intersect each other at point O. Right. Now we have to prove. So prove. Now since ABCD is a rhombus, right? Okay. So we have AB equal to BC equal to CD equal to DE, right? Okay. So in triangle, ये all sides are equal. Now in triangle AOD and triangle COD, clear, right? इस triangle में और इस triangle में, clear? Up, since these triangles are intersect at point O, and we know that the rhombus is a special parallelogram, and we know that the diagonals of the parallelogram bisect each other. Clear? So we can say that
ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्लियर? ठीक है। डायगोनल्स ऑफ, वी कैन राइट diagonals of parallelogram intersect diagonals of the parallelogram bisect each other, right? ठीक है, बिकॉज rhombus is a special parallelogram. Rhombus क्या है? एक स्पेशल पैरेललोग्राम है which is having the all four sides equal, right? And if a parallelogram having all four sides are equal, then it is a rhombus, right? So in the previous theorem we learned that diagonals of the parallelogram bisect each other, right? So OA equal to OC. Now you can see in the figure AD equal to CD. ठीक है, AD equal to CD, sides of rhombus, right? Clear? ठीक है, and this DO OD is common side for both the triangles, is common side, right? Clear? Now these two triangles are congruent. Triangle AOD is congruent to triangle COD by SSS congruence rule. Clear? That means if these two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. यानी angle AOD equal to angle COD by CPCD. That means corresponding parts of congruent triangles. ठीक है, so according to this, because ये अगर congruent हो गए, then that means this angle equal to this angle equal to this angle. Clear हुआ? ये corresponding angles हो गए. So and we know that these two angles are forming linear pairs, but we know angle AOD plus angle COD equal to 180 degree, forming linear pair, right? ये जो एंगल है, that AOD and COD is forming a linear pair because they are in a straight line. ठीक है, so we can write that by CPCT we have proved that angle AOD equal to angle COD, so we can write this one as angle COD. So that is angle COD plus angle COD equal to 180 degree, right? And we can write that twice angle COD equal to 180 degree, or we can write angle COD equal to 90 degree. Clear one? COD equal to 90 degree. यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल COD equal to 90 degree. क्लियर हुआ? सो हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया. एंगल AOD एंगल इक्वल टू एंगल COD ये हमने प्रूव कर दिया था, राइट? ठीक है, एंड दैट इज बोथ आर हैविंग 90 डिग्री, ये भी हमने प्रूव कर दिया. क्लियर? दैट मीन्स AC is perpendicular to BD. क्लियर हो गया? सो वी कैन राइट दैट AC is perpendicular to BD. ओके, सो आपका काम है आप इस वीडियो को ऑब्जर्व करें और जो भी मैंने बताया है वो आप अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे गूगल क्लासरूम के थ्रू सेंड कर दीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल है, two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. ठीक है, एक L and M two parallel lines है and that P is a transversal. ठीक है, so that the quadrilateral formed by bisector of interior angles is a rectangle. हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, अगर हम इसके इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं
तो जिनके बाइसेक्टर हैं वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव इट। यानी टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल है, दैट मीन्स हमें क्या क्या प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें एक तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और पैरेललोग्राम के साथ साथ इसके ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है देन दैट मीन्स उसके सारे एंगल 90 डिग्री, इंटीरियर इस क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। एक भी एंगल अगर हम 90 डिग्री करते हैं तो सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। देन दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम फिर क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का हो जाता है देन ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सो इट्स गिवन, जो हमें दे रखा है वो हम कर लेंगे यहां पर। गिवन लाइन एल पैरेलल टू एम, एल लाइन एल एंड लाइन एम इज पैरेलल टू एम एंड पी इज अ ट्रांसवर्जर, पी इज अ ट्रांसवर्जर, MP is a ट्रांसवर्जर, राइट। ये P ट्रांसफर हो गया। नाउ इंटीरियर एंगल क्या हो गए, PAC। ठीक है, ACQ, CAS एंड ACR। और इनके जो बाइसेक्टर है क्या हो गए, AB। देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इक्वल हो गए। ये बाइसेक्टर है AB इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये बाइसेक्टर का काम करेगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। सिमिलरली आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और इस एंगल की बात करें कि ये बाइसेक्टर है, दैट इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये यहां पर हमें जो गिवन है हमने एक छोटे से फॉर्म में इसको लिख लिया है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए इसके, क्योंकि ये ट्रांसवर्जल है, ये ट्रांसवर्जल है, P is a transversal and L and M are parallel, then that means PAC, angle PAC is equal to angle PAC is equal to angle ACR, ACR। क्लियर हुआ? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम इनका हाफ कर देते हैं तो हाफ भी इनके इक्वल हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2, यानी हाफ ऑफ PAC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACR। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो ये इसका भी हाफ कर देंगे तो दोनों हाफ इक्वल हो जाएंगे। अब हाफ मींस ये बाइसेक्टर है, दैट हाफ एंगल मींस ये एंगल भी तो हाफ है इसका। BAC इज हाफ ऑफ PAC, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इक्वल टू, अब ये एंगल ACR का हाफ कौन है, ये हो जाएगा ACD, एंगल ACD। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये एंगल अब इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर आप देख इन बाइसेक्टरों को देखिए, कौन से बाइसेक्टर, AB इस लाइन, सॉरी हाँ, ये जो बाइसेक्टर है AB एंड CD है, और ये एक अगर इन दोनों को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस लाइन, और इनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, देन दैट मीन्स ये भी तो पैरेलल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई, AB एंड CD। ठीक है, AB एंड CD आर इंटरसेक्टेड बाय P लाइन। ठीक है, एंड देयर इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे।
अभी हमने प्रूव कर दिया ना, ये इंटीरियर एंगल देन दैट मीन्स ये लाइन, ये जो बाइसेक्टर है इस बाइसेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर हुआ भाई। हमें हमारे पास में ये प्रॉपर्टी भी है कि इफ टू लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन एंड इफ देयर इंटीरियर्स एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो हमने यहां पर ये इस थ्योरम से या इस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने ये किया सेम हम ऐसे कर सकते हैं कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, यानी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यानी ये क्या हो गया। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, राइट, पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर दिया। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, देन दैट मींस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें सिर्फ एक ही चीज प्रूव करनी है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि एक भी 90 डिग्री हुआ तो इसका पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90। पैरेललोग्राम की अपोजिट एक और प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो एडजेसेंट एंगल है 180 डिग्री, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें चलिए देखिए, इसमें पी ए सी एंड एस ए सी, इन दोनों में देखिए एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ए सी एंड एस ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। अब इन सबका हाफ कर दीजिए, हाफ मीन्स डिवाइड बाई बोथ दिस साइड, डिवाइड बाई 2। सो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल एस ए सी इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो हाफ ऑफ पी ए सी दैट मीन्स बी ए सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस इसको एंगल क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ एस ए सी दैट मीन्स हाफ ऑफ सी ए डी, ठीक है, एंगल सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये एंगल एंड ये एंगल बोथ आर, सॉरी ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा, यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी बी, ये इसका हाफ हो गया ना, बी ए सी इस पूरे का हाफ होगा पी ए सी का। ये एंगल और ये एंगल हमने कर दिया 90 डिग्री, ये हमने 90 डिग्री कर दी। दैट मीन्स ये एक एंगल है पैरेललोग्राम का, एंगल ए, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। सो we have proved that ABCD is a rectangle। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। हमें ABCD is a rectangle, दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना था, पहले हमें ये पैरेललोग्राम बनाना था कि ये एंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। और जब इसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया देन दैट मीन्स वो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्लियर हो गया। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कैसे हमें इसको प्रूव करना है। क्लियर हो, थैंक यू। एक्सरसाइज 8.1 सिक्स्थ क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisect angle A so that first it bisect angle C also and ABCD is a rhombus। देखिए हमें जो प्रूव करना है, that we know two parts we have to prove। first it bisect angle C, that means this equal to this, यह हमें प्रूव करना है। and second one is ABCD is a rhombus। already this is a parallelogram, it will be rhombus when all sides are equal, and this side is equal to this side is all our sides equal। ठीक है, तो इट्स गिवन, जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर गिवन। प्रूफ हमें ये करना था, टू प्रूव ऑल टू पार्ट्स, एंड जो गिवन पार्ट है वी राइट हियर इन द हेडिंग गिवन। ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। क्लियर, ठीक है। ABCD is a parallelogram, that means
ए बी इक्वल टू डी सी and AD equal to BC. यानी this side equal to this side and this side equal to this side. ठीक है. And there's also is given diagonal AC bisect angle A. Diagonal AC bisects angle A. That means angle DAC is equal to angle BAC. क्लियर हुआ? ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है. नाउ हम प्रूफ वाले प्रोसेस पे आ जाते हैं. प्रूफ. अब प्रूफ में हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे. ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC. ठीक है. सिंस दिस ABCD इज अ पैराग्राम, सो एंगल B इक्वल टू एंगल D. ठीक है. एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैराग्राम्स आर इक्वल. आपको पता होना चाहिए अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम. ठीक है. एंड इट्स गिवन एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC. इट्स गिवन, राइट. तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा? किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हो तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा. सो एंगल दिस एंगल, ठीक, लेट दिस, हम इसको अगर मानना भी चाहिए, चलो इसको रहने दीजिए. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA. ठीक. दैट मीन्स व्हाट इज दिस? दैट मीन्स एंगल it bisect angle C. That means diagonal AC bisects also angle C. क्लियर हो? ये हमें प्रूव करना था. फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. नाउ सेकेंड पार्ट. ABCD is a rhombus. ये rhombus है. ABCD is a rhombus. कैसे करेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल. अगेन अगर आप इसमें देखें, अब हम ये देख लीजिए थर्ड तो ऑलरेडी ये वाले साइड के इक्वल हो जाएगा. ये तो ऑब्वियसली हमें ये भी पता था. लेकिन हम ये भी जाने कि अगर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, एंड दिस इज ए कॉमन साइड. सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, राइट, बाय आप कह सकते हैं ASA रूल्स. ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. कॉन्ग्रुएंट होंगे दैट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स AD इक्वल टू AB बाय CPCD हो जाएगा. क्लियर हुआ? ठीक है. तो आप चाहे इसको पहले लगा लीजिए कि ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा. ये तो हमें पता होना हो जाएगा. तो ये तो पहला वाला प्रूफ तो हमारा हो गया. दूसरे वाला प्रूफ में हमने ये कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है. और कॉन्ग्रुएंट है दैट मीन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड वी नो दैट दिस साइड इज आल्सो दिस साइड, दैट मीन दिस साइड इज आल्सो दिस साइड, एंड वी नो दैट दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड. सो वी नो दैट वी कैन गेट दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. देखिए बाय CPCD. बट we know AB इक्वल टू DC. ठीक है, ध्यान से दीजिए. AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू AD इक्वल टू CB. AD इक्वल टू CB, राइट. भैया हमने ये कर दिया AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC या CB. ठीक है, ये हो गया. दैट मीन्स इससे हमें क्या पता लगता है? दैट मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA.
Clear हुआ? It means all sides are equal. So we can say that ABCD is a rhombus. We have proved. So we have proved ABCD is a rhombus. It's a rhombus. क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस ढंग से हमें इसे करना है। ऑप्शन ये आप सब अपनी नोटबुक में लिख लेना और मुझे आज ही ये गूगल क्लासरूम के थ्रू जमा कर